راست کے SCO سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مرکزی تقریب ہونے جا رہی ہے اور معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف خود مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور انتہائی اہم موقع ہے۔ پاکستان SCO سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس سلسلے میں اب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ SCO سیکرٹری جنرل جونگ منگ کنونشن سینٹر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم دن ہے پاکستان کے لیے، انتہائی اہم موقع ہے۔ SCO اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اور کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس اجلاس کی میزبانی اور صدارت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف خود مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ اہم اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل SCO کا خیر مقدم کیا، ان کو ویلکم کیا اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ آپ براہ راست یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر SCO سمٹ اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب اسلام آباد کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کی میزبانی اور صدارت کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے افتتاحی خطاب بھی کیا جائے گا اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس کانفرنس کا ایجنڈا بھی پیش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 10 سے زیادہ ممالک اس کانفرنس میں شریک ہیں اور تمام ممالک کے عالمی رہنما اور وزراء اعظم اس سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، جس میں رشیا کے وزیر اعظم اور چینی وزیر اعظم لی چینگ بھی پاکستان پہنچے ہیں اور انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف معزز مہمانوں کا خود استقبال کر رہے ہیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے کہ SCO سمٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ 23واں SCO کا یہ اجلاس ہے جس کی صدارت پاکستان کر رہا ہے۔ بالکل، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ 23 سال بعد پاکستان کو کسی بڑے ایونٹ کی میزبانی کا موقع ملا ہے اور پاکستان نے اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی ہیں، بھرپور طریقے سے اس کو اس کا انعقاد کیا ہے اور سب کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مرکزی تقریب جاری ہے۔ عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ SCO سیکرٹری جنرل کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل SCO کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کے وزیر صنعت سید محمد عطابق نور بھی شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ روس اور ازبکستان کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مختلف ممالک کے جو وزراء آئے ہیں وہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ہمارے ناظرین 5 نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود مہمانوں کو خوش آمدید کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا لمحہ اور بڑا اچھا تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی روایت کو برقرار
दरकिनार रखते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम हैं वो खुद मेहमानों को खुशामदीद कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल SCO भी पहुंच चुके हैं, उनका भी खैर मकदम किया है। ईरान के वजीर सनद भी पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ मेहमान जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद हैं वो पहुंच चुके हैं। उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कन्वेंशन सेंटर में सब आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब भी करेंगे। बिल्कुल, आपको बराह रास्त मनासिर ये दिखा रहे हैं कि SCO का इजलास अब से कुछ देर के बाद शुरू होने जा रहा है और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगी। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ख़ुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं और उनका खैर मकदम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में मौजूद हैं। SCO समिट में शिरकत करने के लिए 10 मुस्तकिल रुकन हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान इस साल SCO समिट की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास होने जा रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ख़ुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये बराह रास्त मनासिर आप देख रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास है जो पाकिस्तान में कामयाबी से जारी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी मौका है। इस मेज़बानी से पाकिस्तान के इलाकाई असर व रसूख में इजाफ़ा होगा। शंघाई ताउन तंजीम में ख़ित्ते के तमाम अहम ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान इलाकाई सियासत में एक अहम शराकत दार के तौर पर सामने आया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। SCO के कामयाब इजलास से दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक जो तासुर मौजूद है और बनाया जा रहा था दरअसल हकीकत से बहुत दूर है। 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग ने बिलाशुबा पाकिस्तान के हर शोबे को मुतासर किया, लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और पाकिस्तान ने हमेशा हर महाज पर यह साबित किया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ऐसे बड़े इवेंट्स की मेज़बानी कर सकता है जिसकी मिसाल ये SCO समिट है। SCO समिट पाकिस्तान में कामयाबी से जारी है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और 200 से ज़ायद वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं जिसमें सबसे बड़ा वफ़द रशिया का है जो कि 76 रुकनी वफ़द है और सबसे बड़ा वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में रशिया का मौजूद है। और चाइना के वज़ीर आज़म जो कि इस ख़ित्ते में अहम शराकत दार है, चाइना जो कि बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान का एरर ब्रदर है, चाइना के वज़ीर आज़म भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। रूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं जबकि पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO समिट में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज होने वाली SCO इजलास में शिरकत भी करेंगे जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है। दुनिया पाकिस्तान पर इस वक्त एतमाद कर रही है और पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दी जा रही है। दुनिया की मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, सऊदी अरब, रशिया, चाइना, अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल एकदम साजगार है SCO के इजलास के बाद और पाकिस्तान का एक मज़बूत इमेज दुनिया के सामने जाएगा और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान एक कामयाब SCO समिट की मेज़बानी कर रहा है और इस खत्ते के तमाम अहम ममालिक जो कि एक स्टेक रखते हैं पूरी दुनिया में, जो कि 40% से ज़्यादा आबादी रखते हैं, वो इस SCO समिट में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है। आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन की कन्वेंशन सेंटर आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर बाद होगा जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि रूस और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात भी अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान पहुँचे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक
ममालिक ने उनका इस्तकबाल किया। और इस साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास से गैर मुल्की वफूद के सरबराहान भी खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस्लामाबाद में SCO सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते खुद तमाम मेहमानों को खुशामदीद कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का ये 23वां इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में अशाया भी दिया गया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद के सरबराहान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जैसे जैसे वो पाकिस्तान में आते रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वफाकी वज़रा उनको खुशामदीद करने के लिए नूर खान एयरबेस पर गए और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते रहे, गर्मजोशी से मुसाफा किया और खैर मकदमी अल्फाज भी कहे। और इसी तरह आप ये सिलसिला देख रहे हैं कि पूरे इस्लामाबाद को बड़ा ही खूबसूरत सजाया गया है और आने वाले मेहमान जो हैं वो यहाँ के लोगों को और यहाँ के माहौल को देखकर यकीनन बहुत खुश होंगे और अच्छे तासुरात का इजहार करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि चीनी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC गवादर पोर्ट की मदद से चीनी इक़्तिसादी तरक्की से इस्तेफ़ादे का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को बाहमी अहमियत के वसाइल पर चीन की हमेशा गैर मुतसलसल हिमायत हासिल रही है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़राब करने, CPEC मंसूबों को खराब करने की कोशिश मुसलसल करता रहा, लेकिन दुश्मन अपनी मज़मूम कोशिशों में कामयाब ना हो सका, ना हुआ और ना होगा, क्योंकि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद है और अब ये दोस्ती दीगर ममालिक से भी होने जा रही है। और आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होने जा रहा है। आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन की कन्वेंशन सेंटर आमद शुरू हो चुकी है। SCO सेक्रेटरी जनरल कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल SCO का खैर मकदम किया है। ईरान के वज़ीर सनत भी शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। हमारे नाज़रीन 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं। ये मेहमान नवाजी का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, बड़ा ही अच्छा तासुर है कि जब मेज़बान खुद अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है, उनको वेलकम करता है, उनको खुशामदीद करता है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा तासुर जाता है। और पाकिस्तान हमेशा से मेहमान नवाज रहा और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम जो मेहमानान हैं उनको खुशामदीद कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद ही इस इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ जो वज़राए आज़म हैं वो भी खिताब करेंगे और फिर उसके बाद जो दस्तावेज़ात हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे। गैर मुल्की वफूद के सरबराहान भी खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। बिल्कुल शहजादी, एक बहुत अहम मौका है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने इस SCO समिट की मेज़बानी से बहुत कुछ अचीव किया है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है, पाकिस्तान बड़े इवेंट्स की मेज़बानी कर सकता है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है, पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान में वो सब मौजूद है जो दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के पास वसाइल मौजूद हैं। और पाकिस्तान के पास एक अच्छी लीडरशिप और अच्छे माइंडसेट के लोग और थिंक टैंक्स भी मौजूद हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं जिस तरह से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमानों का खुद इस्तकबाल कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया के मेहमान, दुनिया के वफूद और सफारतकार इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान पर पूरी दुनिया इस वक्त एतमाद कर रही है। बहुत ही बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें इस SCO समिट के ज़रिए अचीव की हैं और ये इजलास पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी इंतहाई अहम है और ये ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की कर रही है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके रुकन ममालिक पूरी दुनिया की मईशत के 25%
हिस्से के मालिक हैं और दुनिया की कुल आबादी का 40% आप बनते हैं। और जीडीपी ग्रोथ का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो जीडीपी का तकरीबन 32% शेयर ये 10 ममालिक रखते हैं जो कि एससीओ में शामिल ममालिक हैं। और इसके साथ साथ ये ममालिक तेल और गैस समेत लातादाद मादनी वसाइल से भी मालामाल हैं। पाकिस्तान 2017 में इस तंजीम का मुस्तकिल रुकन बना और अब पहली बार शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की सदारत पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। शंघाई ताउन तंजीम एक इलाकाई, सियासी और इक़्तिसादी और दिफाई तंजीम है जिसे चीन और रूस ने 15 जून 2001 में कायम किया था। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान एससीओ के मेंबर ममालिक थे। पाकिस्तान और भारत ने जून 2017 और ईरान ने 2023 और बेलारूस ने 2024 में इस तंजीम की मुस्तकिल मेंबरशिप हासिल की, और जिसके बाद ये तादाद तकरीबन 10 हो गई है। और पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है एससीओ ममालिक में अगर आप देखें, और इस खत्ते में अगर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान मरकज़ है ट्रेड का इस वक्त, और पाकिस्तान के पास डीप पोर्ट्स हैं। पूरी दुनिया के रूट्स इस वक्त पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं, तो इस वजह से भी पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ जाती है। और कहा यह जा रहा है कि एससीओ समिट के बाद पाकिस्तान की वैल्यूज़ में और इजाफा होगा और दुनिया जो है पाकिस्तान का रुख करेगी, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो सरमायाकारी हो, चाहे वो मुशावरत हो। पाकिस्तान की वैल्यूज़ बढ़ने जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपना एक मस्बत इमेज, एक मस्बत छाप दुनिया के सामने छोड़ दी है। बिल्कुल हसनैन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस कामयाब इजलास के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम किसी भी बड़े इवेंट के लिए हर वक्त तैयार हैं, फिर वो चाहे वर्ल्ड कप हो या ऐसा ही कोई इजलास हो। पाकिस्तान हर किस्म के इवेंट की मेज़बानी कर सकता है, और पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज है ये मनाजिर तो हमारे नाजरीन देख ही रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि मेहमान नवाजी ऐसी होती है। और जिस तरह हमने नूर खान एयरबेस पर अपने तमाम मेहमानों का, उनके वफूद का इस्तकबाल किया, रेड कारपेट इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए, हमारे वजीर आज़म और दीगर वफाकी वुज़रा खुद जा जाकर उनको रिसीव करते रहे। और आज जिस तरह वजीर आज़म खुद कन्वेंशन सेंटर पर बाहर ही दरवाजे पर खड़े हैं और आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कर रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा तासुर जा रहा है। और ऐसे में वो ममालिक के जिनके साथ हमारी समझें कि थोड़ी बहुत अनबन भी चलती रहती है, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से भी उनके भी वजीर खारिजा आए हुए हैं, तो ये एक अच्छा तासुर दिया जा रहा है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि पाकिस्तान हमेशा से मेहमान नवाज रहा, पाकिस्तान हमेशा से मुस्बत सोच रखता है, पाकिस्तान हमेशा से तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। क्योंकि इस वक्त ना, अब से थोड़ी अरसा पीछे जाए तो पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर खुद को तन्हा महसूस कर रहा था, लेकिन अब इस इजलास के बाद पाकिस्तान की ताकत में, पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस में और इजाफा हो गया है। और ये जो वफूद आए हुए हैं, बेशक ये पाकिस्तान के एजाज में, पाकिस्तान के हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छे तासुरात का इजहार करेंगे। और अपने नाज़रीन को बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का आज बाकायदा 23वां इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसमें खिताब करेंगे, जो दीगर ममालिक के वफूद हैं वो भी खिताब करेंगे। उसके बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत होंगे और ये बेहतरीन किस्म का जो इंतजामात किए गए हैं, जो पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जिस तरह मेहमानों को खुशामदीद किया जा रहा है, जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है और जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं हसनैन, अब तक हम देख रहे हैं, चाहे वो मीडिया सेंटर हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो मुतबादिल रूट्स हो, हर तरह की सहूलत पूरे इस्लामाबाद को ना सिर्फ मेहमानों का खास ख्याल रखा गया है, बल्कि इस्लामाबाद और जुड़वा शहर जो है हमारे रावलपिंडी, दोनों शहरों के अवाम के लिए भी मुतबादिल रूट्स दिए गए हैं। उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सिक्योरिटी दी गई है। और इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही सवाल है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है। पूरी कौम खुश है और आने वाले तमाम मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहती है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के हैं, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मेहमानों को खुशामदीद कर रहे हैं कि उसके अब से कुछ देर बाद शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास शुरू होने जा रहा है। आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन की कन्वेंशन सेंटर आमद का सिलसिला भी जारी है। कजाकिस्तान के वजीर आजम भी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद मेहमानान को खुशामदीद कह रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब जारी है। आलमी रहनुमाओं और मंदुबीन की कन्वेंशन सेंटर आमद का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब से इस इजलास का आगाज़ करेंगे। उसके बाद दीगर ममालिक के वफूद भी बारी बारी खिताब करेंगे और इस इजलास का मकसद हम अपने नाज़रीन को बताएं तो आज इस इजलास में जो मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे उनमें मईशत है, तिजारत है, माहौलियात है और समाजी और सकाफती रवाबित के जो शोबे हैं उनमें जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपने नाज़रीन को ये मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के हैं जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मंदुबीन और आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कह रहे हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और मेहमान नवाज मुल्क है। बिल्कुल शहजादी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान एक भरपूर तरीके से और तमाम प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए तमाम मौजूद मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है। हमें याद है कि 2 साल कबल जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत गए थे गोवा में शिरकत करने के लिए, तो उस तरह का प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया गया था। चले खैर, पाकिस्तान उस तरह नहीं करता, पाकिस्तान बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है और पाकिस्तान ने फिर दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने मेहमानों का ख्याल रखता है, किस तरह से मेज़बानी की जाती है, किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के जयशंकर, उनका इस्तकबाल किया, उनसे मिले और बहुत ही गर्म जोशी के साथ जो है उनसे मुसाफ़ा भी किया, जुमलों का तबादला भी किया, उनको पाकिस्तान में वेलकम भी किया और अभी वो पहुँचे हैं कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद उनको वेलकम किया है। बिल्कुल हसनैन, हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने। हम जरा उनसे जानेंगे और अपने नाज़रीन को एक बार फिर से तसल्ली देंगे कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के कैसे हालात हैं। सज्जाद, जरा बताइएगा। वो दिन आ गया है क्योंकि 23वें इजलास की सदारत पाकिस्तान को मिली थी और आज वो दिन है जब ये बाकायदा तौर पर आज इस इजलास का जो मेन पर्पस था वो शुरू हो जाएगा। आज जिना कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म जो सरबराहान मुमलिकत है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और इसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो अपना खिताब करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी 3 दिन से काफी ज्यादा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सख्त की हुई थी और कल से खास तौर पर जब से सरबराहान मुमलिकत के आने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था, उसके बाद से इस्लामाबाद को 5 मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था और सिर्फ रेड जोन में जाने के लिए खुसूसी पासेस जारी किए गए थे। जिन गाड़ियों पर स्टिकर लगे थे सिर्फ वो ही गाड़ियां जा सकती थी। तकरीबन 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस तमाम एरिया में तैनात किए गए थे, जिसमें पुलिस, रेंजर और जो आर्मी है वो भी शामिल थी। और जो बाकी जो इस्लामाबाद है वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं उनको बंद करवा दिया गया था। रावलपिंडी के भी कुछ इलाकों में बड़ी मार्केट्स को बंद करवा दिया था, शादी हॉल को भी बंद करवा दिया गया था क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि किसी भी जगह ज्यादा अफराद इकट्ठे हों और कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए जो कि इस ऐसे मौके पर एक धब्बा भी बन सकता था। ताहम अभी तक की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत बेहतरीन है। रावलपिंडी से मरी आने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया गया था, रवात के करीब इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद किया गया था, बी चौक आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया था। तो इसके अलावा फैजाबाद और जो कन्वेंशन सेंटर के करीब रावल डैम चौक है इसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि यहाँ पर रिहायशी होंगे या फिर जिनको मदऊ किया गया था। इसके अलावा बैरूनी कोई भी अफराद यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते। सज्जाद, ये भी बताइएगा कि आप सिक्योरिटी की तो सूरत हाल बता ही रहे हैं, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका है कि 10 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें चीन के वज़ीर आज़म, रशिया के वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और इस खत्ते के दीगर अहम ममालिक के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं। कितना अहम मौका ये पाकिस्तान के लिए है? क्या ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें 2 बड़े ममालिक जो कि वीटो पावर भी रखते हैं जिनमें रूस और चाइना के वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं
اور دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت چلانے والے بھارتی وزیر خارجہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً 40% کی جو اکانومی ہے انہی ملکوں کے گرد گھومتی ہے، اور 35% کے قریب جو آبادی ہے وہ بھی انہی 8 سے 10 ملکوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اقتصادی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے پاکستان کے لیے بہت بہتر اقدام ہوگا، اور خاص طور پر پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ بہت بہتر طریقے سے دنیا اس کو دیکھے گی، کیونکہ اتنا بڑی جو سربراہی اجلاس کی صدارت کر رہا ہے پاکستان، دنیا کے اوپر جو کافی عرصے سے یہ ایک دھبا لگا ہوا تھا پاکستان، کیونکہ پاکستان کارنر کیا گیا ہے اور اس پہ تنہائی کا شکار ہے، عالمی تنہائی کا، وہ جمود بھی یہاں پر ٹوٹے گا، کیونکہ تقریباً 27 سال کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ابھی تک کامیابی سے اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ جی اور سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے پورے دنیا کے پلیٹ فارم پہ، بڑے ممالک پاکستان میں موجود ہیں، سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں، سعودی وفد بھی ہم نے دیکھا پاکستان آ کر ابھی گیا ہے ایک گزشتہ ہفتے، اور پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ چین پاکستان کے اندر روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کو شروع کر رہا ہے، جس سے پاکستان دیگر ممالک سے بھی جڑ جائے گا۔ تو کیا ابھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، یا یہ بیانیہ بری طرح سے دم توڑ گیا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم ایسی بات کہیں کہ یہ کچھ عرصے تک یہ بیانیہ تو پوری دنیا میں یہ ہو چکا ہے، جب ہمیں سیٹ اپ کے اندر بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اقتصادی معاملات پاکستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے تھوڑے ایسی معاملات چل رہے تھے جس سے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا۔ لیکن اب کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی $5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ یہاں پر جو افتتاحی منصوبے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے جو وزیر اعظم ہے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد مزید 2 روز کے لیے یہاں پر قیام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کئی ایسے منصوبے ہیں ان کو شروع کریں گے۔ گوادر ایئرپورٹ کا بھی انہوں نے ورچوئل افتتاح کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کے تحت دوسرے منصوبے ہیں ان کو بھی زیر غور لایا جائے گا، جس میں خاص طور پر پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کے اوپر بھی چائنا پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ اور سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جس صورتحال میں اور جس وقت میں یہ ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتری کی جانب گامزن ہے، تمام معاشی اشاری جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، ہمارے اداروں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، ہمارے اداروں کی بھی تعریف اس میں بنتی ہے، جس طرح سے حکومت کو بیک کیا گیا ہے۔ تو کتنا بڑا پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے ایس سی او کانفرنس؟ پاکستان کیا کیا اچیو کرنے جا رہا ہے اس ایس سی او کانفرنس کے ذریعے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان کا جو عالمی تنہائی کا شکار تھا، وہ ایک دھبا تھا، وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا بریک تھرو جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا، کسی بھی قسم کی ان دونوں ممالک کے آپس میں اس طرح کی رابطہ کاری نہیں تھی۔ 2016 یا 17 میں جب ان کی وزیر خارجہ سشما سوراج یہاں پر آئی تھی، اس کے بعد بھارتی کوئی اعلیٰ سطحی وقت یہاں پر نہیں آیا تھا، اور اب وزیر خارجہ ان کے یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جو تجارت ہے وہ بالکل بند ہے۔ اگر یہ معاملہ بھی شروع ہو جائے تو پاکستان کو خاص طور پر جو خوراک کے معاملات ہیں، جو یہاں پر مہنگائی ہے، وہ کافی حد تک قابو پانے میں مدد مل سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بڑے منصوبے ہیں، جب پاکستان کے اندر چائنا اور دیگر ممالک سرمایہ کاری کریں گے اور پاکستانی حکومت سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرے گی، تو دیگر ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچیں گے۔ اور سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ایس سی او سمٹ کے لیے آنے والے مہمانوں کو کس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے، ریڈ کارپیٹ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے خود نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا، پھر ابھی خود وہ کنونشن سینٹر میں موجود ہیں اور فردن مہمانوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی کانفرنسز پوری دنیا میں کور کی ہیں، کیا ایسے مناظر کہیں آپ نے دیکھے جس طرح سے پاکستان مہمان نوازی کر رہا ہے اپنے مہمانوں کی؟ جی دیکھیں، پاکستان ہمیشہ سے ہی مہمان نواز ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے جو بھی سیاح یہاں پر آتے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مہمان نواز ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دیا ہے۔ خود وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ استقبال بھی ہمیں دیکھنے میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج مہمان ہیں
उनका भी इस्तकबाल किया। अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता साल हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत गए थे तो उनका उस तरीके से इस्तकबाल नहीं हुआ था, उनसे गालिबन हाथ भी नहीं मिलाया गया था। लेकिन यहाँ पर वजीर आजम ने कल भी जब इशाया दिया तो उस वक्त भारतीय वजीर खारजा से मुसाफा किया और आज भी उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। तो ये चीजें पूरी दुनिया इस चीज को नोट कर रही है और पाकिस्तान किस तरीके से वेलकम कर रहा है इंटरनेशनल जो फोरम्स पर जो लोग आ रहे हैं और किस तरह अपनी मेहमान नवाजी से लोगों के साथ पेश आ रहा है, ये तमाम लोग अब देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर मजीद सरमायाकारी होगी तो ये रास्ते खुलेंगे।